Welcome to Kanchi TV। Kanchi TV ਤੇ ਹੋਮਪੈਥੀ ਨੇਚਰਸ ਕੋ ਸ਼ੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਕੁੰਜ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਵੈਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਮਪੈਥ ਹੈਗੇ ਨੇ for nearly over 40 years। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ I am proud to say ਕਿ Dr. Nikunj is the chairman of UK Homeopathic Medical Association। So with Dr. Nikunj ji, homeopathy will grow very much। ਚਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਖੇਮਾ। Hello to both of you, welcome to the show। Thank you। And first of all, I'd like to thank you ਤੁਸੀਂ time ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ show ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। It's my pleasure for inviting me on Kashi TV, and really I am highly thankful to Kashi TV and Dr. Vinod Kumar ji। Thank you very much। So ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ I would like to ask you ਕਿ how did your interest grow in homeopathy? Why did you choose this field? Homeopathy is such a noble science, and homeopathy, why I entered in homeopathy is a very interesting question, because when homeopathy was just growing in Gujarat and I came to know about the essence of homeopathy, that this science doesn't bear any side effect. Okay. It cures the patients from the root, and when patient starts homeopathic medicine for their condition, the same disease will never recur again to that patient. So that has developed a sort of interest in me, and that's why I was involved more and more in homeopathy. Oh wow, okay. So would you be able to tell our viewers how is homeopathy made then? How are the homeopathic medicines made? Yes, homeopathic medicine being made from the nature, Okay. from the environment, Yeah. like plant kingdom means different plants, then animal kingdom, and then mineral kingdom. So the things which we experience around us, from them the homeopathic medicine is being made, and we are using that. Say for example, I am giving you a simple example. Yeah. We write with the pencil in a school, right? Yeah. That pencil contains graphite, Okay. carbon, and that same carbon has been potentized in homeopathy, and we are using that carbon as a medicine. Right. Same way the capsicum, we are eating capsicum in our day-to-day routine life, and that capsicum has been extracted and the medicine has been potentized from that capsicum, and then it becomes a homeopathic remedy. So this is how the homeopathic is surrounded by us, and we are surrounded by homeopathy. Oh, okay, that's really interesting। That's a very great example. Thank you। मैं आप सबका बड़ा स्वागत करना चाहता हूँ। Thank you जी। और ये बड़ी गर्व की बात है कि आज हमारे बीच में डॉक्टर निकुंज त्रिवेदी जी हैं, और जिनको ये पूरे यूके होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन की चेयरमैन बनाया गया है। ये हमारे भारतीय के साथ साथ होम्योपैथी के लिए बहुत गर्व की बात है। हाँ जी। और मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे पूरी आशा है कि आपके सुपरविज़न में होम्योपैथी बहुत ग्रो करेगी। और आज इन्होंने समय निकाला कांशी टीवी के लिए, इनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। कितनी बड़ी, कितने शब्दों में इन्होंने कितनी अच्छी बात बताई है ना, कि होम्योपैथी की जो पेंसिल हाँ है जी। उसकी जो ग्रेफाइट है उसका हाँ जी। जो डाइल्यूशन पद्धति, उसके अंदर जो डाइल्यूशन बनाते हैं हम लोग, उससे होम्योपैथी कितना आगे बढ़ती है। और होम्योपैथी की, जैसे कि हमने पिछले कई एपिसोड में बताया है कि होम्योपैथी कैसे बनती है, और आज डॉक्टर निकुंज जी से जानने को बहुत अच्छी नई बातें मिलेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए। हाँ जी। So the other question is कि what conditions can homeopathy help with? Homeopathy can help with many chronic conditions. Okay. Homeopathic can work as a supplementary to the conventional medicine, Right. and long-standing condition, because in homeopathy there is one principle, that is psychosomatic conditions. Okay. Majority of our diseases are the transformation from the psychic plane to the body plane, corporeal plane. Psycho means mind and corporeal means body. जैसे कि कोई बंदा Yeah. बहुत सोचता है हाँ जी। फैमिली के बारे में, अपने जॉब के बारे में, और कोई भी स्ट्रेस उसको बग कर रहा है, तो वो सोच की वजह से उसका एड्रेनालिन का लेवल बढ़ता रहेगा। Okay. और एड्रेनालिन जैसे ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो फिर उसको होगा वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब कि नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल। Okay. उसकी वजह से होगा उसको ब्लड प्रेशर।
तो होम्योपैथी में हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाई देने की बजाय उसको अगर हम स्ट्रेस रिलीव करने की दवाई देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज हाउ होम्योपैथी इज वर्किंग। देखो कितनी बड़ी अच्छी गल दस रहे हैं ना कि होम्योपैथी जिदा से पिछले एपीसोड सविता जी बताया वी आर डूइंग 2-3 एपिसोड्स ऑन होम्योपैथी एंड वी आर डिलाइटेड टू टेल कि होम्योपैथी कैसे बनती है और हमारा अवेयरनेस जो ये प्रोग्राम हमें प्लेटफॉर्म मिला है कांची टीवी में। तो जैसा कि डॉक्टर निकुंज जी बता रहे हैं कि हम लोगों को इमोशनली उनका बहुत देखने का, जैसे हमारा एक टेम्परामेंट बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल जो बनता है होम्योपैथी के अंदर, और उसको माइंड से रिलेटेड करते हैं। और क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम आ रही हैं वो सब इमोशनली सब कॉन्शियस उसके माइंड के अंदर फीड हो रही हैं, उसको निकालना। और धीरे धीरे जब वो फिज़िकल अपीयरेंस लेती है तो होम्योपैथी ना कि मेंटली लेवल पर उसको देखता है, होम्योपैथी के डाटा भी उसके सिम्टम्स को हम करते हैं। और जब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ये ज़रूरी नहीं कि ब्लड प्रेशर बढ़े, उसको डिप्रेशन और कई चीज़ें भी मेंटल के साथ डॉक्टर हो सकती हैं, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ जी, हाँ जी। सप्रेशन ऑफ इमोशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर जिसके अंदर छुप जाते हैं। जैसे मैं अपने व्यूअरों को बताना चाहूँगा, क्योंकि डॉक्टर निकुंज जी जो होम्योपैथी के अंदर वर्ड यूज़ करते हैं, तो हम लोग अपने उसके अंदर व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि जो इमोशंस आप जितने भी ज़िंदगी के अंदर आप अपने इमोशंस हैं वो नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं, नेगेटिव इमोशंस को आप अंदर दबाते रहते हैं और सुप्रेस करते हैं। जैसा कि हम पिछली बार बता रहे थे कि होम्योपैथ के पास जाने का एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो यह कि आप अपनी दिल की बात बताते हो, आपकी दिल की बात उसके साथ आधा पौना घंटा करते हो, जो कि उसको काउंसलिंग एक मिलती है और उसकी जो छुपी हुई एनर्जीज़ हैं या उसके छुपे हुए इमोशंस हैं वो बाहर आते हैं। तो और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर निकुंज त्रिवेदी जी क्लिनिकल होम्योपैथ, वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी रिसर्च 40 साल एक साइंस को देने, और इनका अपने भारत में गुजरात प्रांत से होम्योपैथी से रिलेशन है। फिर यहाँ यूके में आए 25 सालों से, वो 2004 से आप यहाँ पर होम्योपैथी कर रहे हैं और इन्होंने टीचिंग की है होम्योपैथी की, और वेरी सिंपल वर्ड्स में इतने लोगों को इन्होंने ठीक किया है और साथ ही साथ होम्योपैथ को एक नई दिशा दी है। होम्योपैथ में किताबें लिखी है और इनका जो स्पेशली मुझे इनके बारे में जब पता चला तो क्लिनिकल, क्योंकि यंग होम्योपैथ जब आते हैं प्रैक्टिशनर्स तो डॉक्टर साहब उनको एक क्लिनिकल होम्योपैथी का डाटा बनाने में बड़ी देर लगती है। तो आप जैसे जब डॉक्टर्स मिलते हैं और उनका जो रिसर्च वर्क देखते हैं, और जब हम वो पेशेंट को, जब कोई क्लाइंट आता है और उनको सीधा आप जैसे का तजुर्बा हम यूज़ करते हैं उसमें होम्योपैथी का, तो बहुत फ़ायदा होता है और उसको इसलिए क्लिनिकल होम्योपैथ कहते हैं। क्लिनिकल होम्योपैथी को मुझे क्लैरिफाई इसलिए यहाँ करना है। हाँ जी। क्लिनिकल होम्योपैथी में क्या होता है कि जैसे कि आई एम ए क्लिनिकल होम्योपैथ, आई ऑलवेज एडवाइज माई पेशेंट टू ब्रिंग द ब्लड रिजल्ट्स, स्कैन रिजल्ट्स, MRI का रिजल्ट है, ब्लड का रिजल्ट है, या कोई भी इन्वेस्टिगेशंस जीपी ने करवाए हैं, कंसल्टेंट ने करवाए हैं, वो लेकर आओ। देखो उस पर हम केस का एनालिसिस करते हैं और केस एनालिसिस के बाद जो रेमेडी हम देते हैं, इससे उस पेशेंट को कितना ठीक होता है वो दूसरे टेस्ट में हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं जिसको दमा की बीमारी है, जिसको अस्थमा कहते हैं, राइट। अस्थमा के केस के अंदर क्लिनिकल होम्योपैथ क्या देखेगा, हिस्ट्री देखेगा और फिर उसके नाखून देखेगा कि उसके नाखून में क्लबिंग है कि नहीं है जी। क्लबिंग मीन्स ड्रमस्टिक जैसे नाखून हो जाते हैं, जो ड्रम बजाते हैं ना इंडिया में, उसी टाइप के ड्रमस्टिक जैसे नाखून हो जाते हैं। और जब पेशेंट को मैं देखता हूँ कि उसके नाखून ऐसे नहीं है, तो फिर मैं पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि आप अपना ब्लड का रिजल्ट लाओ जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ इओसिनोफिल कैसे है। अच्छा, अगर वो ज़्यादा है, होम्योपैथी की जो दवाई है नेट्रम सल्फ में यूज़ करता हूँ, तो इसकी वजह से ये इओसिनोफिल कम हो जाते हैं जी। और जैसे इओसिनोफिल कम हो जाता है तो उसकी सांस की बीमारी चली जाती है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन
क्लिनिकल होम्योपैथ। वी आर कंपेयरिंग। हाँ जी, Okay. फिजिकल अपीयरेंस डॉक्टर निकुंज जी ने जैसे और- कहा कि उसके जो फिजिकल अपीयरेंस है वो देखने के बाद उनको, तो इसमें डॉक्टर निकुंज जी जो डायग्नोज जो हम लोग करते हैं वो हमारा हम व्यूअर को बताना चाहेंगे कि वो जीपी के अकॉर्डिंग नहीं है हमारा, है ना? नहीं, इसमें- जीपी के अकॉर्डिंग ही है। अच्छा, हाँ, जो जीपी डायग्नोस करते हैं वही चीज़ हम डायग्नोस करते हैं। ओके। Okay. मगर हमारा जो एनालिसिस है, रेपर्टराइजेशन हम करते हैं, जी। जितनी सारी पेशेंट की PQRS जिसको कहते हैं, मतलब कि पिक्यूलियर क्वेयर रेयर स्ट्रेंथ सिम्टम्स, जैसे कि ठंडी में आइसक्रीम खाना, ओके। ये अजीबोगरीब चीज़ है। देखो ठंडी में आइसक्रीम खाना, हाँ जी। क्योंकि हमारे कई व्यूअर होंगे जिसमें ठंडी में अगर Yeah. आइसक्रीम खाते हैं तो उनको उसका इफेक्ट आता है। दूसरी चीज़ आती है कि कोई लेडी हाँ जी, जब रसोई घर में हाँ जी, जो राइस छानती हैं, हाँ जी। तो एक मुट्ठी भर राइस वो खा लेती हैं। ओह। वो हमेशा तो कोई ऐसा नहीं करता। हाँ जी, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द PQRS एंड इन होम्योपैथी दैट इज कॉल्ड द PICA, मतलब कि एबनॉर्मल क्रेविंग फॉर अनडाइजेस्टेबल थिंग। कोई Okay. पेंसिल खाता है, कोई चौक खाता है, हाँ, वो कोई साइकोलॉजिकल मिट्टी खाता है, तो दिस इज अनयूजुअल थिंग। देखो होम्योपैथी में इसका तो कितना होम्योपैथ जो है वो उस पर ध्यान देगा और इसके हिसाब से उसकी दवाई निकालेगा, वही दवाई पेशेंट को ठीक करेगी। देखो कितना क्लिनिकल होम्योपैथ में कई बार हमारे जो व्यूअर हैं वो होम्योपैथी को एक बहुत साधारण सी सिंपल साइंस समझते हैं। हाँ जी। और कई बार वो यूके में सोचते हैं कि होम्योपैथी का प्लेटफॉर्म नहीं है ना? तो नहीं, इसलिए होम्योपैथी का प्लेटफॉर्म तो सब जगह पर है, हाँ जी। मगर प्रॉब्लम क्या है होम्योपैथी में, उसको किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो, जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और Very हमें important. पूरी आशा है कि डॉक्टर निकुंज जी आपके सुपरविज़न में हम लोग काफ़ी आगे ग्रो करेंगे करेंगे। और होम्योपैथी यूके होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन का जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म हमें मिला है और आपके द्वारा जो भी उसमें नई नई जो जानकारियाँ मिलेंगी हम और धीरे धीरे देंगे। Okay. Vinod ji, if you wouldn't mind me asking, I would like to know if you can tell our viewers कि how did you both meet? जी, ये सविता जी बड़े गर्व की गल हैगी आ कि व्हेन आई मीट डॉक्टर निकुंज त्रिवेदी जी, अब लोग जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड्स में बताया था कि मेरा जो यंग जनरेशन है या हमारी जो वेजिटेरियन जनरेशन है या होम्योपैथी के अंदर ये कह लीजिए कि एक एक्सपीरियंस डॉक्टर निकुंज की तरह नहीं है हमारा। हाँ जी। तो हम लोग स्पजरिक थेरेपी को लेके चल रहे थे जो कि पार्ट ऑफ होम्योपैथी है Okay. और जो सिर्फ प्लांट ओरिएंटेड सिस्टम मेडिसिन है। तो हम यहाँ पर उसकी अवेयरनेस के लिए होम्योपैथ से कांटेक्ट करते हैं। तो उसी के दौरान मेरा डॉक्टर निकुंज जी के साथ मिलना हुआ। लेस्टर में ये प्रैक्टिस करते हैं, तो इन्होंने बड़ा वेलकम किया। सबसे बड़ी जो मुझे अच्छी बात लगी डॉक्टर निकुंज जी के हाँ जी। अंदर, वो इन्होंने एक प्रोत्साहन दिया, सपोर्ट किया कि आप एक यंग टैलेंटेड होम्योपैथ आए हैं यूके हाँ में। जी। तो कई बार क्या होता है कि आप एक डॉक्टर निकुंज जी की अगर आप प्रोफाइल देखें तो मेरे को लगता है कि पूरा एपिसोड निकल जाएगा क्योंकि इनके 40 साल बहुत बड़े होते हैं। और होता ये है कि डॉक्टर निकुंज जी, आई एम नॉट सेइंग ऑन द टीवी ओनली बिकॉज कई बार जो यंग टैलेंटेड होते हैं, जो न्यू प्रैक्टिस वो दब जाते हैं। हाँ जी। क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके पास केस हिस्ट्रीज के लिए दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। तो वहाँ पर जब डॉक्टर निकुंज जी से मैं मिला तो सबसे पहले तो इन्होंने अपना ना कहकर मेरी जो स्पजरिक होम्योपैथी को हम जो बढ़ा रहे थे हाँ जी। उसको सपोर्ट किया और वेलकम किया। Oh, wow. और यहाँ तक भी इन्होंने ये खुद ही इसके बारे में अगर खुद बताएं तो ज़्यादा अच्छा है कि इनको क्या अनुभव प्राप्त हुए। लेकिन स्पजरिक में हमारा इनके साथ जब उठना बैठना हुआ, हम मिले, तो इन्होंने जब होम्योपैथी में अपना एक्सपीरियंस बताया और जब वो उसके कुछ जो क्लिनिकल होम्योपैथी के कुछ एक्सपीरियंस जब मैंने उसको होम्योपैथी स्पजरिक में अप्लाई किया हाँ तो वो और ज़्यादा हमें एक सपोर्ट मिला। तो इस तरह से हमारी मुलाकात हुई और इन्होंने आगे आगे कहा कि मैं स्पजरिक के अंदर किसी भी तरह की आपको सपोर्ट चाहिए होगी तो मैं तैयार हूँ। तो आपका थैंक यू। देखो, हमारी ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन, जी, हमारे जो फाउंडर हैं डॉक्टर हनुमान साहब, तो हनुमान साहब ने जिस तरह से गीता होती है, जिस तरह से बाइबल होता है, जिस तरह से कुरान होता है, जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब होता है, उसी तरह
हमारा जो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है, इट्स ए होली बुक एंड वी हैव टू फॉलो इट्स प्रिंसिपल। देखो Wow. तो उसके पहले पन्ने पर लिखा है ऑडे सपेरे। ऑडे सपेरे का मतलब है डेयर टू बी वाइज। मतलब कि एज ए होम्योपैथ यू हैव टू इन्वेंट एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट द न्यू थिंग्स। जी रिसर्च तभी तो होगी ना। देखो, Wow. थैंक यू, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई अगर आपने। स्पेजरिक को आपने इस्तेमाल नहीं किया तो उसकी खूबियाँ क्या है वो कैसे पता पता लगेगा। चलेगी। थैंक यू। बराबर है। तो इसी दौरान मैंने स्पेजरिक का विस्कम एल्बम Okay. डॉक्टर विनोद साहब से ऑर्डर किया। मैंने कुछ अपने पेशेंट पर उसका रिजल्ट देखा एंड आई वाज अमेज्ड। Wow. और इसके लिए मैंने एक डेटा बनाया कि कौन से पेशेंट में कौन सा चेंजेस आता है। वो डेटा मैंने डॉक्टर विनोद को दिया कि देखो डॉक्टर विनोद साहब, ये डेटा से हमें और हमारे पेशेंट को ये फ़ायदा हो रहा है। हाँ जी। और फिर हमारी दोस्ती बन गई। नहीं, बहुत बड़ी बात इन्होंने जिस डाटा बनाने के लिए सविता जी, मैं सारे व्यूअर को बताना चाहूँगा, कोई छोटी बात नहीं है। उसके लिए समय निकालना, उसके लिए पेशेंट के साथ इंटरेक्ट होना, और इतने बिजी लाइफ में इन्होंने अपनी, ये राइटर भी हैं, होम्योपैथी के ऑथर, काफ़ी बुक्स लिखी हैं जैसे, और इनका स्पेशलाइजेशन बुक्स के साथ साथ यंग होम्योपैथ को मिलता है। तो कहने का मतलब था कि इन्होंने समय निकाला और एक नई दिशा दी। और जब इन्होंने वो विस्कम एल्बम जो कॉम्प्लेक्स है होम्योपैथी के अंदर, और वो जर्मन मेड है, और वो जब इन्होंने अपने पेशेंट्स के ऊपर ट्राई किया, तो हमें क्या होता है कि जब कोई एक्सपीरियंस क्लिनिकल होम्योपैथ जब अपना डाटा बनाता है, वो जब हमें इन्होंने दिया, तो हमारे आने वाले होम्योपैथ के लिए, और प्लस जो हम पेशेंट देखते हैं उनके लिए, वो स्पजरिक में एक माइलस्टोन बना। और उसके लिए हमें पता लगा कि किस तरीके से हम इनका जो डाटा है वो कैसे यूज़ किया जा सकता है, और कैसे कैसे रोगों पर वो दिया जा सकता है। तो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस। और इन्होंने समय निकाल के हमारे जैसे यंग होम्योपैथ्स को आगे बढ़ाने का एक बहुत सुनहरी मौका दिया। और धीरे धीरे इन्होंने, अभी मैंने इनसे पीछे बात चल रही थी हमारी, तो हम लोग एक टीचिंग फैसिलिटीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर निकुंज जी अपना एक्सपीरियंस के साथ साथ हमें नई दिशा देंगे, और बहुत अच्छा लगेगा इसके अंदर। हाँ जी। Another question I have, Dr. Nikunji, is Yes. I have heard कि people like homeopathy medicine you have to keep under the tongue. I just wanted to know why do you have to keep it under the tongue? It's a very good question. Yeah. एंड आई एम ऑल्सो एक्सप्लेन टू माई पेशेंट एज वेल। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि भगवान ने हमें जीभ दी है, टंग को हम जीभ कहते हैं। हाँ जी। जीभ इज़ ए पावरफुल वेपन। इफ यू एनकरेज समवन विद द हेल्प ऑफ योर टंग, you can make a big change. And if you can use some bad words to someone, you can ruin someone's life. मतलब कि आपकी जबान, मगर जीभ जो है हाँ जी, उसको दो टाइप के नर्व सप्लाई होते हैं। वन इज सेंसरी विच इज कमिंग फ्रॉम द ब्रेन, अनदर nerve supply is coming from the spinal cord, that is called the motor nerve supply. So jeeb means tongue is supplied by the two type of nerves, that is sensory and motor. Second thing, tongue having a fine sensation, with that you can feel, जैसे कि खाते समय कई कंकर आ गया तो आपको जीभ से ही पता लगेगा। जीभ से ही आपको सभी टेस्ट मालूम पड़ेंगे कि ये मीठा है, ये सॉल्टी है, ये सावर है, ये तीखा है, तो जीभ से ही पता लगेगा। तो व्हेन यू आर पुटिंग द होम्योपैथिक मेडिसिन अंडर द टंग, द स्मॉल पार्टिकल्स रिलीजेस एंड इट स्प्रेड्स थ्रू द टंग with the nerves, with the sensory and with the motor nerves, and that impulse is correcting the patient's vitality. That sensation, that transformation is correcting the patient's health condition. इसीलिए सभी दवाई जीभ के नीचे रखने से पेशेंट को क्विक रिजल्ट मिलता है। जैसा कि डॉक्टर निकुंज जी बता रहे हैं, व्यूअर को मैं बताना चाहूँगा कि सवाल ये है कि होम्योपैथी, मुझसे भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं और पेशेंट हमेशा पूछते हैं, और कई बार तो मेडिकल फैकल्टीज़ में हम लोग जब एक्सपर्ट से मिलते हैं तो वो भी सवाल करते हैं कि आपकी दवाई जीभ के नीचे क्यों रखना चाहिए। तो डॉक्टर निकुंज ने कितना अच्छा एग्जांपल दिया। सबसे पहले तो इना कहने का मतलब सीगा कि
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੀਭ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਲਾइवा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल मेन स्ट्रीम और साइकोलॉजिकल इफेक्ट एकदम उसको माइंड को पता चलता है और वो सलाइवा के थ्रू क्योंकि कई बार कहा भी गया है कि यू आर व्हाट यू ईट सो उसके हिसाब से बॉडी हमारा जो जीव है उसके अंदर जो सलाइवा है रस प्रक्रिया जो हमें टेस्ट बताती है और उसके थ्रू हमारे को पूरे ऑर्गन्स में और मेंटली लेवल पर और फिज़िकल लेवल पर वो अनुभव करती है और वो सारा डाइजेस्ट क्रिया में बहुत बड़ा एक रोल है तो होम्योपैथी मेडिसिन उसके अंदर उसके थ्रू काम करती है ये बहुत बड़ी बात है Wow, okay. हाँ जी Another question is what if I am already taking conventional medicine? Can I take homeopathy with it? Yeah, of course. Because homeopathy is classified in a complementary. Okay. And when patient is taking that conventional medicine and the patient takes the homeopathic remedies or homeopathic medicine, it complements with each other. Okay. Yes, any patient can take, yeah. Okay. And on the contrary, patient recover very quickly. Oh wow. That's हाँ really बिल्कुल interesting. जैसे ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਕੁੰਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ है ना और कई बार डॉक्टर साहब ये भी पूछते हैं लोग कि जो अगर हम कन्वेंशनल मेडिसिन ले रहे हैं तो होम्योपैथी लेने का क्या फ़ायदा साथ में तो कई बार ऐसे सवाल आते हैं हमारे पास कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ होम्योपैथी की कुछ दवाई वर्ज्य है मतलब कि यू कैन नॉट टेक सर्टेन मेडिसिन अलोंग विद द कन्वेंशनल हाँ जी उसकी एक लिस्ट है पूरी हाँ जी जैसा कि कोई भी पेशेंट है जी एंटीकोएगुलेंट लेता है हाँ जी तो उसके साथ होम्योपैथी की कुछ दवाई है वो नहीं ले सकते नहीं ले जा सकते राइट हाँ जी हाँ जी कुछ हर्बल दवाई है वो नहीं ले सकते जी इसी तरह काफ़ी मेडिसिन ऐसी है कि जो एक दूसरे के साथ मैच नहीं होती नहीं है करती इसीलिए मेरी व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है कि कभी आप अपने आप दवाई ना लें हाँ जी होम्योपैथी दवाई लेनी है तो क्वालिफाइड कंसल्टेंट होम्योपैथ के पास जाकर ही दवाई लें जी सेल्फ मेडिकेशन इज़ वेरी डेंजरस सम टाइम इवन विद दैट your consultant GP, your consultant from different branches, he get confused कि ये चीज़ क्यों हो रही है जी जी तो इसीलिए कोई भी दवाई लें आप होम्योपैथी की ले तो इससे पहले क्वालिफाइड होम्योपैथ का परामर्श करके उसके साथ कंसल्टेशन करके आप ले तो आपकी सेहत के लिए वो अच्छा बहुत है अच्छा हो और इसके लिए आपको कोई कॉम्प्लिकेशन भी फेस नहीं करना पड़ेगा हाँ और उसमें अगर आप जीपी को बता देते हैं कि मैं होम्योपैथी कंसल्टेशन ले रहा हूँ और उसमें ये दवाइयाँ हैं तो वो और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट करेगा Okay. क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं उसको जो ठीक हो रही हाँ हैं जी। जो कंट्रोल में आ रही हैं उसको फाइंड आउट करने में बड़ी सहूलत मिलती है जी Okay. And then another question I have is, when you're taking homeopathy medicine, I've heard you have to avoid drinking coffee or eating garlic or lime and stuff, pickles. Is this true and why? Yes. Because as I explained earlier, कि होम्योपैथी दवाई सभी जीभ के नीचे रख के लेनी पड़ती है जी Okay. और जीभ इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव आवर टंग इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव जी विद द नर्व सप्लाई विद द टेस्ट बड्स जी Okay. तो जैसे कि आपने कॉफ़ी पी है जैसे कि आपने पेपरमिंट खाई है जैसे कि आपने च्युइंगम खाया है और जैसे कि आपने पापड़ खाए हैं जी तो these all are irritant so it stimulates the nerve and nerve gets irritated so with that if you are taking any homeopathic medicine the effect will be bit less but coffee is considered to be the one of the antagonistic Okay. factor it abolishes the complete effect of the homeopathic medicine Oh. and sometime we first tell patient that first stop the coffee जी wait for a couple of days and then come to us so our medicine can show the better effect on Okay. your system so this is the explanation क्योंकि Okay. कईयों को बहुत कॉफ़ी पीने की आदत है हाँ 3-3 जी, 4-4 कप yeah. और उससे भी ज़्यादा चाय ज़्यादा और पीते हैं। हाँ तो इसलिए उसमें फिर इंटरेक्ट करती वो होम्योपैथी की Okay. दवाइयाँ को काम करने का जो तरीका है वो नहीं कर पाती फंक्शन और फिर धीरे धीरे फिर कई बार वो अपनी आदत छोड़ता नहीं है और होम्योपैथी काम नहीं करती तो फिर वो ऐसा सोचता है कि होम्योपैथी ने काम नहीं किया है ना Okay. तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि और होम्योपैथी में वैसे भी बताया जाता है कि कॉफ़ी ज़्यादा जी। नहीं पीनी कॉफ़ी चाहिए है टोबैको है स्मोकिंग है स्मोकिंग है Okay.
इंडिया में जब मैं प्रैक्टिस करता था तो जी। क्या काफ़ी पेशेंट को मैं पहले कहता था कि वो जो तंबाकू खाते हैं ऐसे जी, जी। या गुटखा खाते हैं, हाँ। अगर ये खाते हैं तो आपको होम्योपैथी का होम्योपैथी, जी। कोई फायदा नहीं होगा। सो वी हैव टू अश्योर अवर पेशेंट कि पहले आप ये बंद करो, आप फिर ये हमारे बंद पास आओ, तभी हमारी सिस्टम अच्छे से काम करेगी। जी। Okay, very interesting. And is homeopathy safe? यस, 100%. Okay. Yeah. And then like If it is oh, sorry. given by a qualified homeopath with a proper case taking, with a proper history taking, and sometime if patient is hiding something, जी, then it is not the homeopath's fault. Okay. बिल्कुल। बराबर है। देखो कितनी हाँ अच्छी बात अगर है। पेशेंट कोई बात छुपाता है होम्योपैथ से, तो होम्योपैथ क्या करेगा? हाँ जी, बिल्कुल। और उसको इसी गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसके हिसाब से गलत रेपर्टाइजेशन होगा, हाँ और जी। गलत रेपर्टाइजेशन होगा तो पेशेंट को फायदा नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि होम्योपैथी के साथ जब आप मिलते हो तो आपके पास पूरी Honesty। जानकारी, ऑनेस्टी, जब आप पूरे दिल की बातें बताते हो Okay। तो उसके अंदर कोई चीज़ हाइड नहीं करनी चाहिए हाँ आपके जी। साथ। और होम्योपैथी ही नहीं, एक डॉक्टर के साथ आप जब कोई भी अपनी मर्ज बताते हो या अपनी प्रॉब्लम बताते हो तो वो ऑनेस्टी से बताओ तो वो ठीक हो सकती है, उसको हाँ जी। ठीक करने में बहुत मदद मिल सकती है। Okay। तो वही डॉक्टर निकुंज जी का कहने का मतलब है। और होम्योपैथिक सेफ मैं इसलिए भी कहूँगा क्योंकि होम्योपैथिक डायलूशन जो पद्धति है ये एक नई तरह की सक्सेस, जो उसके अंदर जो पोटेंसीज जो हाँ हम जी। बनाते हैं। आज ही सवेरे मुझे एक नई चीज़ पता लगी जो मैं चाहूँगा डॉक्टर निकुंज जी बताएं कि पोटेंसी जो बनाते हैं तो 99 और 100 उसके ऊपर स्ट्रोक्स। हाँ, जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं हाँ जी। Okay। तो एक होम्योपैथिक फार्मेसी का अलग सा सब्जेक्ट आता है, हाँ वो जी। 1 साल तक पढ़ना पड़ता है। इसमें काफ़ी मेडिसिन, जिसको हम होम्योपैथी में पॉलीक्रिस्ट कहते हैं, Okay। वो पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन किस तरह बनाई जाती है उसकी ट्रेनिंग हमें लेनी पड़ती है। Wow। कि जैसे 1 पार्ट ऑफ द क्रूड सब्सटेंस हाँ जी। और 99 पार्ट ऑफ द व्हीकल, मतलब कि जैसे कि मैंने डॉक्टर विनोद जी को पहले मॉर्निंग में ही बता रहा था हाँ मैं जी। कि जैसे कि गोल्ड से होम्योपैथी मेडिसिन बनती है, तो 1 पार्ट ऑफ द गोल्ड, जैसे कि 1 ग्राम गोल्ड और 99 हाँ जी। पार्ट ऑफ द शुगर ऑफ मिल्क, उसको ट्रिचुरेट करना पड़ता है। Okay। और उसको कुछ घंटे तक ट्रिचुरेट करके उसमें से 1 पार्ट और फिर 99 पार्ट, उसमें से 1 पार्ट फिर 99 पार्ट, सो दैट इज कॉल्ड द सीरियल डाइल्यूशन मेथड। Okay। जो सब्सटेंस इतनी डाइल्यूशन से पास होकर हाँ जी। निकलता है तो उसके अंदर एक क्यूरेटिव पावर बन जाता है, एंड जी। दैट क्यूरेटिव पावर इज क्योरिंग द पेशेंट्स कंडीशन विच इज सिमिलर टू द डॉक्ट्रिन ऑफ द सिग्नेचर। जो पेशेंट की कंडीशन होती है, जो हाँ पेशेंट जी। के सिम्टम्स होते हैं, उसी से ही है। क्योंकि होम्योपैथी की खोज कैसे हुई? हाँ जी। डॉक्टर हनुमान साहब ने देखा कि एक तालाब है, उसके अंदर एक पेड़, इसके पास में एक पेड़ है, हाँ जी। पेड़ के पौधे तालाब के अंदर गिर रहे हैं, हाँ। और उसमें से जो पेशेंट पानी पीते हैं उसी को फीवर आता है। ओह देखो Wow। देखो। फीवर क्यों आ रहा है? तो फिर उन्होंने ही वही पौधे लेकर उसको ट्रिचुरेट किया, वही पेड़ की छाल, मतलब कि उसको बार्क कहते हाँ हैं, जी। सिंकोना बार्क, ऐसा। उसको ट्रिचुरेट किया, खुद खाया और उनको भी ऐसे सिम्टम्स आने लगे। जी। Wow। तभी से होम्योपैथी का आविष्कार हुआ, तभी से होम्योपैथी इन्वेंट हुई। हालांकि वो खुद फार्मासिस्ट थे। यस, दिस इज अ सीरियल डाइल्यूशन मेथड, जी कि जिसको इतना डाइल्यूट कर दिया जाए कि उसके अंदर एक क्यूरेटिव पावर बन जाता है, बिल्कुल। और दैट क्यूरेटिव पावर इज हेल्पिंग द पेशेंट टू क्योर द सफरिंग। जी। और जैसे कि हम लोग अभी स्पजरिक के बारे में बात कर रहे हाँ थे, जी। और स्पजरिक में सिर्फ और सिर्फ हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर निकुंज त्रिवेदी जी के स्पजरिक क्या है, उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि होम्योपैथी के जो प्रिंसिपल हैं वो दोनों पे अप्लाई होते हैं। हाँ जी। कईयों को लगता है कि स्पजरिक जो थेरेपी है वो बिल्कुल होम्योपैथी से अलग है, हाँ जी। या होम्योपैथी के जो प्रिंसिपल्स हैं जैसे डायलूशन पद्धति है उसको, हालांकि जो स्पजरिक की जो डायलूशंस हैं वो 1:10 है, जो डी पोटेंसीज में आती है उसमें बनाते हैं, वो 100 में नहीं जाते वो। विनोद जी, मेरा मानना तो यह है जी। कि कन्वेंशनल मेडिसिन हो, होम्योपैथी हो, या। स्पैजरिक हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, जी। कोई भी हो, जी। सोर्स तो सिर्फ एक ही है, एक ही है, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम। जैसे कि बेलाडोना होम्योपैथी में अलग से बनती है, जी। एलोपैथी में अलग से बनती है, स्पैजरिक में अलग से बनती है, आयुर्वेदिक में अलग से बनती जी। है, मगर बेलाडोना जो रूट है वो तो बेलाडोना ही है। बेलाडोना ही है जो नेचर ने दे रखा है। हाँ देखो कितनी बड़ी एक पॉइंट बताया इन्होंने कि सबको अपना अपना तरीका
से उन्होंने दवाई उसमें बनाई। जैसे कि अगर मैं सिंपल हाँ समझाऊं जी। तो बेसन बेसन ही होता है, ओके। बराबर है। किसी ने लड्डू बना लिया, किसी ने भजिया बना लिया, किसी ने और कुछ चीज बना ली। मतलब कि सिंपल थिंग इज दैट द main principle, main thing is only one, but it's a different type of principles that we are making and we are administering to the patient. ओके। पेशेंट के हम उसको अलग अलग तरीके से, एलोपैथी वाले उसके हिसाब से करते हैं, स्पेजरिक में उसके हिसाब से होते हैं, होम्योपैथी में उसके हिसाब से होते हैं, मगर रिजल्ट तो किसको मिलता है? पेशेंट को मिलता है। पेशेंट को मिलता है, उसका बेनिफिट लास्ट में पेशेंट को ही पेशेंट को होता ही है। मिलता है। हाँ, और ये जितनी भी रिसर्च ये अगर हम देखिए कि 40 साल से अगर कोई रिसर्च की इनके पास डाटा हाँ है जी। और बड़ा काम आता है वो हमारे, तो वो इसका मतलब कितने हजारों पेशेंटों पर इन्होंने वो जो बेनिफिशियल उनको दिया है और बड़ी दुआएं मिलती हैं, बहुत खुश होते हैं कि जो एक बहुत सालों से सफ़र कर रहे हैं और जब वो होम्योपैथी की शरण में आते हैं, एक अच्छे होम्योपैथ से मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है होम्योपैथी में। And another question I'd like to ask is, Yes, does homeopathy have any side effects? And if there are any side effects, is there anything that can help within homeopathy? साइड इफेक्ट तो सबकी होती है, Okay, होम्योपैथी के भी साइड इफेक्ट होती है, okay, मगर कब होती है? व्हेन होम्योपैथ हैज़ फेल टू चूज द राइट रेमेडी, जिसको कहते हैं होम्योपैथिक एग्रावेशन, जो पेशेंट को अच्छा करता है, okay, मगर जब गलत दवाई होती है तभी साइड इफेक्ट होती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर कोई पेशेंट है एलोपैथी को कोई मेडिसिन दे रहा है, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट पर है, और उसके साथ जो होम्योपैथी की मेडिसिन कॉम्पिटेबल नहीं है, तभी साइड इफेक्ट होती है। हाँ जी, इसीलिए कभी कभी तो उस पर लिखते हैं, लेबल पर भी लिखते हैं कि डोंट टेक दिस थिंग अलॉन्ग विद द होम्योपैथिक मेडिसिन। okay, एलोपैथी के अंदर भी जब पेशेंट को, जैसे मैंने बताया कि कोई एंटीकोएगुलेंट ले रहा हाँ है जी। तो उसके साथ होम्योपैथी कुछ मेडिसिन सूट नहीं करेगी, तो इसी टाइम पर साइड इफेक्ट होती है। जब रॉन्ग केस एनालिसिस होता है, रॉन्गली सिलेक्टेड मेडिसिन दी जाती है, तो मेडिसिनल एग्रावेशन आता है। होम्योपैथिक एग्रावेशन में क्या होता है? पेशेंट को एग्रावेशन आता है, जैसे कि कोई एक्जिम का पेशेंट जी, होम्योपैथी की दवाई दी, पेशेंट को 1-2 दिन के अंदर स्किन पर थोड़ा रैश हो गया, मगर पेशेंट इज फीलिंग बेटर, दैट इज कॉल्ड द होम्योपैथिक एग्रावेशन। okay, मेडिसिनल एग्रावेशन में क्या होता है कि होम्योपैथिक की दवाई दी मगर पेशेंट वर्स्ट ही होता जा रहा हाँ है, जी। उसको आराम ही नहीं आता है, तो उसको कहते हैं मेडिसिनल एग्रावेशन। मतलब साइड इफेक्ट तो है। और Okay. कोई भी चीज़, एक संस्कृत में कहावत है, हाँ जी। अति सदा वर्जते। कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेस कर लो तो उसकी साइड इफेक्ट होती है। Okay. जैसे कि आप सब्जी बना रहे हैं, आपने ठीक से नमक डाला तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा, मगर नमक ज़्यादा पड़ गया तो क्या होगा? देखो देखो हाँ जी, कितनी वाह। अच्छी बात बताई तो दिस इन्होंने। इज द वे हाँ जी। एंड वी हैव टू फॉलो दैट प्रिंसिपल। okay, और इसके पीछे एक क्लिनिकल होम्योपैथ की बहुत ज़रूरत पड़ती है, हाँ जी। और एक एक्सपीरियंस जो हम कई बार अपने एपिसोड में बताते हैं कि होम्योपैथी खुद ट्राई करना, हाँ जी, और फिर होम्योपैथी को बिना सोचे समझे लेना, और फिर कई बार किसी भी किताब के द्वारा पढ़कर होम्योपैथी लेना, उसकी वजह से It's पूरी very एक dangerous. साइंस होम्योपैथी खराब होती है Okay. ना। हालांकि होम्योपैथी के पीछे एक बहुत बड़ा रिसर्च वर्क है और एक बहुत डाटा होता है जिसको मैच करना पड़ता है, और बाद में जब वो लेता है तो उसको धीरे धीरे आराम होता है। और हाँ जी। सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर निकुंज जी ये बता रहे हैं कि जब उनके पास कोई पेशेंट आता है तो उनके पास पहले से ही एक क्लिनिकल एविडेंस, एक केस हिस्ट्रीज़ हैं, और Okay. उसके बाद उनको पता है कि कौन सी रेशो में कितनी मात्रा में, हाँ जी। जैसे इन्होंने अभी बताया है कि नमक कितनी मात्रा में डालना है, तो घर के अंदर जब हमारी बहनें और माता जी खाना बनाते हैं तो उसको पता है हाँ जी, कि किस रेशो में क्या जाएगा, तो वो फिर सबको स्वाद लगता है। तो ऐसे ही एक अच्छे होम्योपैथ, क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास जाके अगर आप दवाई लेते हो तो उसमें आपकी इमोशनली नहीं, हाँ जी। आपकी फिजिकल और मेंटल, कई बार हमने बात की है कि आपकी पूरी बॉडी को देखा जाता है और आपके जो सिम्टम्स हैं उसको मैच किया जाता है। तो Okay. बहुत अच्छी बात, थैंक यू डॉक्टर निकुंज जी। होम्योपैथी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूँगा, इट्स जी। नॉट ए विच साइंस। हाँ, okay, होम्योपैथी इज ए प्रॉपर साइंटिफिकली प्रूव्ड एविडेंस बेस्ड साइंस। देखो ये कईयों का ऐसे, डॉक्टर साहब ये आपने बात बताई, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू, कि कईयों को ऐसा लगता है कि होम्योपैथी साइंस इज़ नॉट द हाँ साइंस। जी, yeah, तो इसके अंदर आप थोड़ा सा और बताइए, मेडिकल आपके अनुभव से हमें। होम्योपैथी इज अ पार्ट ऑफ, इट्स अ पैरेलल टू द मेडिकल साइंस, बिकॉज जब इंडिया में मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया उस वक्त दौर अलग था। हाँ जी,
जब मैं 73 में पढ़ रहा था तो दौर अलग था, जी। अभी दौर अलग है। अभी 5.5 साल का कोर्स हो गया है। जी वाह। हाँ, हमारे 1 साल तक इंटर्नशिप करनी पड़ती है। ओके। इसके बाद अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसको 3 साल एमडी में लगते हैं। ओके। और इसके अंदर पूरी साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड उनको थीसिस लिखनी पड़ती है, जी। जिसको पीयर ग्रुप रिव्यू करता है। और अभी होम्योपैथी में इतनी रिसर्च हो गई है कि बात ही मत पूछिए आप। हाँ जी। वाह। जैसे कि रूटा करके एक मेडिसिन है, अभी जी, मैंने जी। थोड़े दिन पहले ही एक पेपर में पढ़ा कि रूटा ग्रेवियोला करके एक मेडिसिन हाँ है। जी। हाँ जी। वो ब्रेन के ग्लियोमा, एक ट्यूमर होता है, उस पर इतना अच्छा काम कर रही है हाँ जी। कि सभी ने उसको एक्सेप्ट किया हाँ जी। कि हाँ दिस मेडिसिन इज वर्किंग। तो अभी होम्योपैथी में काफ़ी रिसर्च हो रही है, एंड दैट्स वाई होम्योपैथी इज ए रिसर्च बेस्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। वाह। अभी रिसर्च हो रही हो रही है, है। पहले इतनी रिसर्च नहीं नहीं थी। होती। जो हमारे डॉक्टर हनुमान साहब थे, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से सभी लिखा, जी जी। और वही ऑब्जर्वेशन अभी रिसर्च के तौर पर चला जा रहा है। बिल्कुल। जो जो अभी प्रूव हुआ है कि यस होम्योपैथिक मेडिसिन आर वर्किंग। हाँ जी। और ये डॉक्टर जो सैमुअल हनीमैन, वो उनको मैं डेयरिंग पर्सनैलिटी बोलता हूँ। और उनको उन्होंने एक मेडिकल में जो एक इन्वेंशन दी है, और जो स्पजरिक के फाउंडर हैं काउंट मैटेई, और थियोडक्रॉस जो जर्मन में जो दवाइयाँ बनती हैं हाँ जी। स्पजरिक के, थियोडक्रॉस, उन्होंने हनीमैन्स को जब पढ़ा तो उनको लगा कि नेचर्स को एक प्रिंसिपल देकर मेडिकल साइंस में तब्दील करना, ये होम्योपैथी हाँ जी। डॉक्टर हनीमैन की बहुत बड़ी कामयाबी है। और वो उनके बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं। और उनका जैसे आपने बताया कि एक मेडिकल रिसर्च वर्क उनको जब मिला, क्योंकि थियोडक्रॉस के जो दादाजी वो होम्योपैथ हैं, तो उनसे उन्होंने सोचा कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड मेडिसिन ही हाँ जी। बनाना चाहूँगा। क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन, जब हमारे पास का लोग आते थे तो वो पूछते थे कोई ऑप्शन है, तो हम फिर उसके लिए स्पजरिक से दवाइयाँ देते हैं। तो कितनी बड़ी एक मेडिकल साइंस इसके पीछे। और कई बार गलत जानकारी की वजह से होम्योपैथी को एक किताबी साइंस मान लिया गया है कि उसके में कुछ नुस्खे लिखे होते हैं और वो दे दो तो कामयाब हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हाँ है। जी। सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम पहले तो अभी गैस हो गए, जी बराबर है जी मगर पहले जब पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर, इंडिया के अंदर जब चूल्हा जलता था जी हाँ जी। तो लकड़ी जलाते थे, उसका कोयला बनता था। जी। वाह। वही कोयला को पोटेंटाइज किया, देखो। वाह। उसको बोलते हैं कार्बो वेजिटेबलिस, ओह, और उसको पोटेंटाइज करके उससे दवाई बनी। तो वो दवाई बनी डाइजेशन प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, जिसको जी। इंडाइजेशन होता है, देखो कितना उसको क्योर करने के लिए उसमें से दवाई बनी। और वही दवाई अभी आयुर्वेदिक में भी बनती है जी। डाइजेशन के लिए। और अभी उसकी टूथपेस्ट भी आपको मिलती है चारकोल करके, हाँ जी हाँ जी वेजिटेबल चारकोल, बिल्कुल, बराबर है। बिल्कुल। चीज़ हमारे सामने ही होती है, मगर हमारी नज़र वो नहीं होती कि जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी हम पहचान सकें। जी जी। देखो जैसे कोयला को हम लोग दांत मंजन करते थे, और कई बार बर्तन साफ करते थे, करने में कितने भी, अच्छा। तो उसका एक होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से, और कभी एक अगर देखा जाए तो होम्योपैथी के सिवा कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि उसको कोयला prove से किया जाए, उसका yes। प्रूव किया जा सकता है। डॉक्टर साहब कई बार देखने में आता है कि क्योर वर्ड जो होता है, और हम लोग जब कॉन्वेंशन पेशेंट आता है बोलता है कि कॉन्वेंशन मेडिसिन कहती है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, तो उस बारे में आपका एक्सपीरियंस लेना चाहें। कई बार इसमें मतभेद होता है व्यूअर्स को। हनुमान ने पहले ही लिखा हाँ है जी। फर्स्ट एफोरिज्म में, जी फिजिशियंस ड्यूटी इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ। जी राइट। जी जो एबनॉर्मल पैथोलॉजी पेशेंट के अंदर हो गई है, हाँ जी होम्योपैथिक दवाई से होम्योपैथी की एक ड्यूटी बनती है कि उसको नॉर्मल किया जाए। और हमेशा मैं मेरे वेबिनार में, मेरे सेमिनार में, मेरे लेक्चर्स में, जी। मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं उनको समझाता हूँ कि इट इज़ आवर फर्स्ट ड्यूटी टू रिस्टोर द एबनॉर्मल पैथोलॉजी टू द नॉर्मल फिजियोलॉजी। जी। उसको होम्योस्टेटिस होम्योस्टेसिस देखो, मतलब कि उसको फ्रांस में कहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में हाँ जी हाँ जी मिलू इंटीरियर। जो नाम है होम्योपैथी कहाँ से हाँ पड़ा, जी। वो देखो ये व्यूअर के लिए बहुत अच्छी जानकारी है। होम्योस्टेसिस मतलब कि टू स्टैंड स्टिल, जी। मतलब कि एवरीथिंग शुड बी इन वन नॉर्मल इन रिदम, रिदम। every should be in proper equilibrium। जी
जैसे जी, कि आपकी अगर सेहत अच्छी है, हाँ जी, आपको कोई परेशानी नहीं है, आप खुश हैं, आपको भूख लगती है, आपको नींद अच्छे से आती है, आप पानी अच्छी तरह से पीते जी। हैं, आपको थकान नहीं लगती, मीन्स यू आर इन नॉर्मल इक्विलिब्रियम बिकॉज जी। यू डोंट हैव एनी स्ट्रेस। वाओ, मगर जब उसमें से एक भी चीज़ जी, जी, अगर इधर उधर हो गई, आपको नींद आना Imbalance बंद हो गया, गई, जी, मतलब इट्स एबनॉर्मलिटी। हाँ, आपको Okay. भूख लगनी कम हो हो गई, गई। देन इट्स एबनॉर्मलिटी। आपको प्यास कम लग रही है, देन जी। इट्स एबनॉर्मलिटी। देन इट इज आवर ड्यूटी टू फाइंड आउट व्हाई पेशेंट इज फेसिंग सच टाइप ऑफ सिम्टम्स, राइट। ओके, तभी हम हिस्ट्री लेते हैं, जी। देन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रूट कॉज। जैसे खुजली आती है, हाँ जी। हल्की सी खुजली आ गई तो चलो ठीक है, मगर पेशेंट खुजाल ही रहा है, हाँ। देन इट इज आवर ड्यूटी टू Find फाइंड out दैट उसका व्हाई reason। पेशेंट इज इचिंग, वेदर इट्स एक्जिमा, Yeah। वेदर इट्स अ फंगल इन्फेक्शन, वेदर इट्स टेरियासिस। जी, काफ़ी कंडीशन होती जी, है। हाँ, बिल्कुल, डायबिटीज skin अगर disease बढ़ में गया आता तो है, भी हाँ जी। खुजली चलती है, बिल्कुल, यूरिक एसिड बढ़ गया तो भी खुजली चलती है। सो इट इज़ अवर ड्यूटी, एंड व्हेन वी फाइंड द रूट कॉज ऑफ द कंडीशन, व्हेन वी ट्रीट विद द होम्योपैथी, एंड व्हेन दैट कंडीशन गोज अवे, Yeah। तभी उसको कहते हैं कि पेशेंट क्योर हो गए। Cure हो क्योर हमारा शब्द नहीं नहीं है, है उसको, Cure हमारा शब्द उसको नहीं। समझाने के लिए कि हम वर्ड करते हैं, लेकिन जैसे कि हम अपने पिछले एपिसोड में बता रहे थे कि होम्योपैथी सिर्फ और सिर्फ सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है, उसके साथ Holistic साथ होलिस्टिक है। Holistic उसको माइंड बॉडी सोल, जो उसका इमोशनल लेवल है, उसका मेंटल लेवल है और उसका फिजिकल लेवल है, और पूरी बॉडी। देखो ये कितनी बड़ी बात बताई आपने कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूरा सिस्टम उसका एक दूसरे का साथ देता है। तो होम्योपैथ के पास जाने का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ अपनी एक प्रॉब्लम लेके नहीं जा रहे, हाँ जी, आपको पूरा आपका सिस्टम कैसा काम कर रहा है, आपके पास और क्या उसके साथ हिडन आपकी प्रॉब्लम्स हैं, Okay। और आपका इमोशनल क्या आपका है। स्टेटस क्या है, और उसके बाद फिजिकल लेवल पर आपको क्या दुख हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जब एक होम्योपैथ को आप बताते हैं तो पहले तो आप तो हल्के हो जाते हैं, जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं ना कि दिल की बात करने से थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है ना। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो हम लोग होम्योपैथ डायरेक्टली डिजीज ट्रीट नहीं करता। Okay। कई बार हम सोच हाँ जी। ट्रीटिंग पेशेंट एज अ होल, होल, Wow। और फिर सर उसको से बाल से लेकर Okay। पैर के नाखून तक सभी सिम्टम्स सिम्टम्स एक, हाँ जी। तो उसको ये कहना कि हम लोग डिजीज़ को एक दवाई खाई और उसको कोई भी दवाई दे दो तो ठीक हो जाएगा, इस तरह से ना उसके साथ मैच करना पड़ता है, Okay। उसके स्वभाव के साथ मैच करना पड़ता है। और कई बार तो हमारे पिताजी, डॉक्टर निकुंज जी, हमारे पिताजी होम्योपैथिक पिछले 40 सालों से पंजाब में कर रहे हैं। तो वो कहते थे कि जब सबसे अच्छी बात लगती थी जब हम उनके साथ सीखते थे, तो वो कहते थे कि डॉक्टर ऐसा होना चाहिए होम्योपैथी जो उसके साथ बातों में ही उसको आधा ठीक कर दे, है ना। काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं हाँ जी। तो वो जिनको लगता है कि आपके पास आए, हमें आधी बीमारी तो हमारी यूं ही चली गई, बातों से ही, बातों से चली गई। बिकॉज पेशेंट वांट रीएश्योरेंस, जी 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 जी, पेशेंट वांट रीजनिंग, हाँ जी, हाँ कि जी। मुझे ये क्यों हुआ। या और वो काफ़ी सालों से देखो वो सफ़र कर रहा है, और वो सफ़र करते करते जब आप एक होम्योपैथ के पास पहुंचते हो तो उसके पीछे जब आप उसको पूरी दिल की बात बताते हो, आपके सौरों क्या हैं, आपकी हैप्पीनेस क्या है, आपको किस काम में मन लगता है, किस काम में मन नहीं लगता, और फिर वो पैथोलॉजिकली वो एबनॉर्मलिटी आ रही है ना। लेकिन उसका जो रूट कॉज है वो उसके इमोशंस हैं, उसका माइंड है। तो हिडन इमोशंस ऐसी चीज़ है, हाँ जी, कि जैसे कि कोई चीज़ ऐसी होती है, हमारे पास इतने साल से मैं पेशेंट को देख रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो कभी हस्बैंड भी वाइफ के साथ खुल के कोई चीज़ की बात नहीं करता है जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर के पास आकर वो बोलता बात है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब इंडिया में मैं प्रैक्टिस करता था तो मेरे पास एक पेशेंट आया, यंग पेशेंट, जी चेस्ट पेन, जी, चेस्ट पेन के साथ वो आया, उसने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, ओके, उसने काफ़ी ईसीजी करवाए, काफ़ी इको करवाए, जी। पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा था। हाँ जी, 5-6 स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट को ओपिनियन दिया, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। जी, फिर वो मेरे पास आया, किसी ने बता दिया कि इधर मत दिखाओ, वो मेरे पास आया, मैंने हिस्ट्री ली। तो उसकी हिस्ट्री में ऐसा उसने बताया कि जब मैं ड्राइव कर रहा था, मेरे फादर मेरे साथ में बैठे थे, हाँ जी, और हमारा एक्सीडेंट हो गया, और मेरे फादर तुरंत ही हाँ जी जी, चल बसे, जी, उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में। ओके, मगर उसका मुझे इतना गम नहीं हुआ, गम मुझे इस बात का हुआ कि मैं चला रहा था, मुझसे गलती हो गई। शौक उसको, देन ही डेवलप ए फीलिंग ऑफ गिल्ट। अच्छा, दूसरी बात उसने बताई कि मैंने, वो बिल्डर था, कि मैंने इतनी सारी बिल्डिंगें बनाई है, मगर मेरा एक फ्लैट है वो बिक नहीं रहा है।
देखो होम्योपैथ तो दो चीज उसको दिमाग को बक कर रही थी। उसके तो mind हमारी में बैठ होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन है टू रिमूव द बैड इफेक्ट ऑफ द शॉक। जी तो मैंने एक दवाई दी हाँ जी। जिसका नाम है इग्नेशिया। इग्नेशिया। उसका जो मेंटल शॉक था वो निकल गया। दो। थोड़े दिन के बाद फिर से वो आया कि मेरा अभी भी चेस्ट पेन गया नहीं। जी हाँ जी। मैंने बताया कि ओके अभी प्रॉब्लम क्या है, जी कि अभी मैं 1.5 का तो मैं थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा हूँ, बुल रहा हूँ, फिर भी कभी कभी चेस्ट पेन आ जाती है। जी जी। तो उसका जो प्रॉब्लम था वो उसका फ्लैट था, वो उसका फ्लैट नहीं देखो, बिक रहा था। मेरे सारे इतने सारे मैंने बिल्डिंग्स बनाए हैं, मेरे सभी फ्लैट बिक गए, मगर एक ये फ्लैट बिक नहीं रहा है। और उसी वक्त मुझे भी फ्लैट की ज़रूरत थी, तो मैंने वो फ्लैट खरीद लिया। हालांकि हाँ, देखो उसको जैसे मैंने खरीद लिया उसका चेस्ट पेन चला गया, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ द था। शॉक, दैट शॉक। और उसका ये था कि मैं इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी हूँ, जी। मेरी इतनी जान पहचान है, मेरे देखो। इतने कॉन्टेक्ट्स है, फिर भी मेरा एक फ्लैट नहीं जा रहा है। मैंने 100 फ्लैट बेचे। तो दैट वाज द clashes of ego and bad effect of shock. और दिस And इज ऑल if अबाउट combined, होम्योपैथ। then I found a medicine, I gave that, and then it has been completely देखो cured. होम्योपैथ के पास जाने से आपकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। शॉक आपके पास जो फियर के पेशेंट आते हैं तो उसके अंदर बहुत अच्छी, देखो कितनी अच्छी तरीके से दसिया कि होम्योपैथी के अंदर होम्योपैथ कितना थोड़ा ना दोस्त बन के गल करता हाँ जी। है ना। और आपके पीछे माइंड के पीछे क्या बीमारियां लेके बैठे हो, इमोशंस लेके बैठे हो, उसको धीरे धीरे बात करने से अच्छा लगता है। Wow. Okay, it's really interesting. ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ I sometimes think I should adopt homeopathy as well. बिल्कुल, बहुत It's जल्दी। really interesting. हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत गर्व की Yeah. बात होगी। और जैसा कि होम्योपैथी के अंदर हमने बताया कि अभी यूके होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन में सुपरविज़न के अंदर हम डॉक्टर निकुंज के साथ एक बहुत अच्छा टीचिंग फैसिलिटीज़ भी Okay. स्टार्ट करेंगे। और धीरे धीरे नए यंग टैलेंटेड होम्योपैथ की बहुत ज़रूरत है, Oh, उसमें लेके आएंगे। That's हाँ जी, brilliant. yeah. I'd like to ask another question as well. Should I take homeopathy indefinitely? No. Oh no. No. Okay. When your symptoms start disappearing, Right. जैसे कि कोई डॉक्टर, कोई होम्योपैथ ने आपको दवाई दी है Okay. कि आप लो, 15 दिन के बाद, महीने के बाद फिर से मिलो। अगर आप कहते हैं कि मेरे सिम्टम्स अभी ठीक हो गए हैं, मुझे अभी ठीक से नींद आने लगती है, जैसे कि ये पेशेंट की बात मैंने बताई, उसको चेस्ट पेन, जैसे उसका डील हुआ, हमने उसको टोकन दिया, उसका चेस्ट पेन चला गया, फिर उसको दवाई लेने की जरूरत नहीं। Okay. धीरे धीरे तो जैसे आपके सिम्टम्स चले जाते हैं, जैसे आप महसूस करते हो कि आपको भी ठीक हो रहा है, आप अच्छे से फील कर रहे हो, तो फिर दवाई की जरूरत नहीं। मेंटल लेवल पर जब वो ठीक होने लग जाता है Okay. तो कोई वो दवाई की उसके जरूरत नहीं सिम्टम्स होती। जो हैं विड्रॉल हो जाते हैं, धीरे धीरे हट जाते हैं, तो उसको दवाई धीरे धीरे वो छोड़ सकता है। Okay. तो हाँ जी। So Vinodji, as you both are working together, Yeah. I would like to ask, so you have a strong view that homeopathy will grow a lot more जी in बिल्कुल। future and और go ahead? बिल्कुल Okay. अगर डॉक्टर निकुंज त्रिवेदी जैसे 40 साल का एक्सपीरियंस जब मिलता है और होम्योपैथी की एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो है, और इसके अंदर नई नई रिसर्च आएंगी और इनके द्वारा लिखे हुए जो किताबें हैं, और साथ में हमारा जो 2-in-1 जैसे स्पजरिक और होम्योपैथिक जो ओरिजिनल होम्योपैथी है, Okay. उसको जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो होम्योपैथी, और हम इनसे आगे सपोर्ट लेंगे कि किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। होम्योपैथी Okay. और सर्जरी को किस तरीके से हम लोग मर्ज करके एक बहुत अच्छा ऑप्शंस दे सकते हैं, और जिसके अंदर हम लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, मेडिकल जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा, एक दूसरे की सपोर्ट मिलेगी हमें। Okay. तो हाँ जी। मेरा कहना यह है कि कोई भी चीज़ हाँ शुड जी। बी एविडेंस बेस्ड। Yeah. कोई भी चीज़ जैसे कि पेशेंट को रिजल्ट देगी, बराबर है, जब रिजल्ट मिलेगा तो फिर कोई पब्लिसिटी की जरूरत ही नहीं जी, रहेगी, जी, ऑटोमेटिक पीपल विल टर्न टुवर्ड्स इट। जैसे होम्योपैथी है इंडिया में, अभी अगर आप देखें जी तो इट्स अ सेकंड लाइन ऑफ लार्जेस्ट यूज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन बिल्कुल। और पूरे वर्ल्ड एलोपैथी में के बाद जी इसीलिए तो गवर्नमेंट ने एक आयुष डिपार्टमेंट खोल के रखा है जी। कि जहाँ होम्योपैथी की रिसर्च होती है, होम्योपैथी के डॉक्टर्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट किया दी जाती है, उसको गवर्नमेंट के जरिए ही काम करना होता है। तो होम्योपैथी ने एक अपना एक जगह बना ली है, लोगों के दिल में भी बना दी है और गवर्नमेंट में बना दी है, और इसीलिए होम्योपैथी इज लीगलाइज्ड इन इंडिया। और क्योंकि हमारा
टर्की में कर दिया है, हाँ जी, अभी बहुत कई इजराइल में देशों किया में- है, देशों धीरे में धीरे अभी होम्योपैथी is a full इज डेवलपिंग recognition, हाँ जी। एवरीवेयर। वाओ। या और यूके यूरोप में और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये सर्वे है, हमने कई बार Okay, एपिसोड में yeah. बताया कि सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन Medicine, आफ्टर एलोपैथी, Wow. कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ। और तो मैं ये बहुत- भी बताना चाहूँगा कि मेरे पास काफ़ी एलोपैथिक डॉक्टर भी आते हाँ हैं। जी, Wow. बिल्कुल मैं देखो, काफ़ी एलोपैथिक डॉक्टर को भी ट्रीट करता हूँ, Okay. और क्योंकि वे जानते हैं हाँ कि जी। होम्योपैथी में कुछ खूबियाँ हैं, हम्म, कुछ खासियत है, कुछ देखो। क्रिएटिव पावर है कि जो एलोपैथी में नहीं नहीं है। है, तो उसके हिसाब से वो फिर मेरा कहना यह है कि होम्योपैथी सब कुछ ऐसा नहीं है, होम्योपैथी के भी कुछ लिमिटेशंस हैं जी। और इफ वी प्ले विद इन द लिमिटेशंस, Yeah, कुछ यूके रूल्स हैं कुछ हमारे पास। अगर हम होम्योपैथी को लिमिटेशंस के तौर पर प्रैक्टिस करें तो होम्योपैथी बदनाम नहीं होगी, पहली होगी, चीज़ ये। देखो और दूसरी बात कि होम्योपैथी की खूबियाँ वर्ल्ड को भी पता लगे कि होम्योपैथी से इतना ही ठीक हो सकता है। बिल्कुल। अगर हार्ट अटैक का पेशेंट मेरे पास आ गया तो मैं बोलूंगा कि भाई साहब हाँ। आपको एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में ही Acute जाना case, हाँ है। जी, तो ये मैं रूल्स नहीं हैं। मैं नहीं हाँ। ठीक कर सकूंगा। हाँ बिल्कुल, Okay. हाँ ये समझना पड़ेगा कि तो होम्योपैथी कब और कब ये जो natural- डिफरेंस है ना, हाँ जी, हाँ जी। वो समझना जरूरी है, Okay. उसको फॉलो करना जरूरी है। होम्योपैथी सब कुछ ठीक नहीं कर नहीं कर सकती, सकती, उसके एलोपैथी भी सब कुछ ठीक नहीं कर सकती, स्पेजरिक भी सब कुछ हाँ ठीक जी, नहीं कर हाँ, सकती, तो उसके अपने- और अपने यूनानी रूल- भी नहीं हाँ कर जी, सकती, हाँ। आयुर्वेदिक भी नहीं, सभी के लिमिटेशन। कोई भी साइंस कंप्लीट नहीं है और एक Yeah. दूसरे के साथ मिलकर होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो ये बहुत अच्छा है। कई देशों में और कई जगह इंटीग्रेटेड मेडिसिन जो कन्वेंशनल मेडिसिन और होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मिलकर जो काम कर रहे हैं और एक नई रिसर्च आ रही है, तो बहुत यू अच्छा कैन लगा। कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। किसी को एलोपैथी दवाई की साइड हाँ जी। इफेक्ट हो गई, डायबिटीज वाला हाँ, पेशेंट है, तो वो मेटफॉर्मिन खा रहा है, हाँ, तो वो- उसको पिन्स एंड नीडल्स हो रहे हैं, अगर वो आपके पास आता है तो आप होम्योपैथिक दवाई से उसको ठीक कर सकते ठीक कर सकते हैं। आप अब- स्पेजरिक के ठीक कर सकते हैं, आपको सप्लीमेंट देकर वो ठीक कर सकते ठीक ठीक हैं। बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ I'm जी। so sorry to interrupt. टाइम तो चली जा रहा हाँ जी। है। I think we will need another episode. गला तो बहुत कुछ हुई है। नहीं बहुत And, देखा टाइम पता नहीं चले। और मैंने कहा सी कि डॉक्टर निकुंज हमारे साथ इतने इंडिया का एक्सपीरियंस है, 40 साल से होम्योपैथी कर रहे हैं और वहाँ का एक्सपीरियंस है, यूके में इनको प्रैक्टिस करते हो कितने साल हो गए, तो ये सब की वजह से हाँ ये जी। तो बहुत अच्छा लगा। So बहुत हाँ जी, I have learnt a lot in this episode, Yeah. and I would like to thank Dr. Nikunji for It's taking my part. pleasure. It's my pleasure to share my views, my thoughts, and hope that these Yeah. thoughts could be helpful to the viewers. Thank you And very really, much I'm for very, very watching. thankful to the Kashi TV. Thank you so Thank much. you. थैंक यू To टू द Dr. ऑल Vinod. व्यूअर्स। Thank you very much.